So this is little technical view of how we are going ahead. Just I'll explain it. I'm just choosing a proper color. Yeah. So in 25 kV system, if we take one TSS feed to 70 kilometers, and we should know what is our headway. Headway means after how much interval trains are coming. So every 20 minutes, every 10 minutes, and fundamentally we design our system for n+1. If one TSS fails, with the feed extension we take care of the system without losing punctuality, without losing operation of our train. And also for the maintenance also we need to, एक TSS तो कभी ना कभी shut down करना ही होता है. So that is kept in our mind, that at the feed extension what will be our voltage drop. So we see that with 160 84 100 MVA rating, oblique 100 MVA rating, voltage at the end is 21.1, and at the worst condition is not going below 19 kV. So these are the design features of our 25 kV. And if we look towards the voltage drop, so the blue color is voltage drop for 2 into 25 kV, and this is the minimum, means इसका राइज ज़्यादा नहीं है, मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इसका मिनिमम है. This is what we wanted. This picture now give clear idea about 2 into 25 kV TSS. So this is the one number, second TSS, third TSS. In between there will be neutral section. In between there will be neutral section. ATs will be provided at SP, at SSP, at TSS, and wherever required. AT, I should tell auto transformer. Auto transformer are provided at SP, SSP, TSS, and wherever required, it will be auto transformer station, ATS. Only auto transformer will be available in case there is a voltage drop problem. So these are the all design feature and being provided by RDSO. And now, having understood the basics, let us understand how is the current distribution of a 2 into 25 kV system. So one animation will come. Actually, computer is getting little slow, and therefore animation slide is not working properly. But anyway, this is how current collection looks like, and this is our train. Let me mute all. Okay, now proper. So this is our locomotive, and as we have discussed that there will be a TSS secondary, then many ATs. So 1, 2, 3, 4, between there are 4 ATs. So locomotive is always, our train is always between 2 ATs. It is, I should tell, auto transformer. So they are in between auto transformers, and middle of the auto transformer is earth. Our rail is earth, and current comes from overhead equipment, that is OHE, from TSS, and also from both the ATs. So to distinguish both, I am referring here a short loop and a long loop. Long loop means TSS से जो आ रही है, और short loop means the current basically which is in between the two ATs. So once we understand what is short loop current, what is long loop current, things will be crystal clear. So mathematics I am leaving behind. The current coming from the
OHE will be half of the current taken by the locomotive. सरल शब्दों में बताऊं तो जो दो ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में लोकोमोटिव होता है, वो यदि करंट 100 एम्पियर ले रहा है तो जो OHE से करंट आएगी वो हाफ, मतलब 50 एम्पियर होगी. So this is the long loop current distribution, and if we understand and remember this, many things we can conclude. So this is the short loop current distribution, and here the current by the basically the current by the auto transformer is inversely proportional to the distance of the locomotive from the auto transformer. फिर से इसको यदि सरल शब्दों में मैं समझाऊं तो जो जब लोकोमोटिव जिस ऑटो ट्रांसफार्मर के पास होगा वो ऑटो ट्रांसफार्मर इसको ज़्यादा करंट देगा. आई सेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मीन्स यदि डिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा करंट फीड करेगा. और फंडामेंटली वी हैव अंडरस्टूड कि लोकोमोटिव हमेशा दो एटी के बीच में होगा. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट. द लॉन्ग लूप करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कि दो ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में हमारा लोकोमोटिव है, वो कुछ करंट ले रहा है, और ये करंट कहाँ से आ रही है? एक तो TSS से आ रही है और दोनों ऑटो ट्रांसफार्मर से भी आ रही है. जो ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रही है वो तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर पास है वो ज़्यादा करंट दे रहा है, और जो TSS दे रहा है वो हाफ ऑफ द करंट दे रहा है. अब इसको हम एक लार्जर व्यू देखें तो देयर विल बी मेनी सच लूप्स. तो जो हमने KCL KVL सिंपल एक लूप के लिए पढ़ा था, और यहाँ इतने सारे लूप हो जाएंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, एंड देयरफॉर कंप्यूटर सिमुलेशन इज मस्ट. फर्दर वाट एवर आई एम डिस्कसिंग, एक्चुअली डिस्कसिंग विथ सिंगल लाइन, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो अप एंड डाउन दोनों लाइन का होता है. अप एंड डाउन लाइन भी आपस में पैरेलल होती हैं. पैरेलल करना जरूरी भी है फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेसिकली जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ, सिंगल लाइन का बताया, यदि अप एंड डाउन दोनों लाइन है, वहाँ भी एटीज लगे हुए हैं, वो भी आपस में पैरेलल हैं, उसको कॉम्प्रहेंड करना लिटिल डिफिकल्ट है, और सिमुलेशन के रिजल्ट से ही हमें पता चलता है कि कौन से नोड हमारे ओवरलोड हो रहे हैं. दिस पिक्चर विल क्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर स्लाइड्स. तो यहाँ पर एक ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और मैं आपको केवल एक मेन या टर्सरी दिखा रहा हूँ. तो मेन एक साइड फीड कर रहा है, टर्सरी दूसरी साइड फीड कर रहा है, और TSS के सामने न्यूट्रल सेक्शन लगा हुआ है. वी ऑल नो दैट एट प्रेजेंट एवरी TSS शुड हैव न्यूट्रल सेक्शन इन फ्रंट ऑफ इट, अदरवाइज फीड एक्सटेंशन में वो वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम भी आती है. तो TSS ने फीड किया, कितना किया? सिंस लोकोमोटिव करंट इज 400, ये इसका हाफ किया, 200 एम्पियर किया, हाफ ऑफ द करंट रिक्वायरमेंट बाई आवर लोकोमोटिव. तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ओवरहेड इक्विपमेंट में करंट कम फ्लो हो, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन 480 450 एम्पियर ले रही है OHE से. तो जो OHE से करंट फ्लो हो रही है वो तो मेरी हाफ हो गई. एग्जिस्टिंग OHE सेम OHE है, और लोकोमोटिव को क्या हुआ? 200 एम्पियर इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द TSS, एंड द बैलेंस करंट इट इज रिसीविंग फ्रॉम AT. और किस तरीके से ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसको आप देखें यदि, तो दिस इज द लोकेशन, द ग्राफ बिलो in between the 280 shows the current distribution. So what we have learned, यदि लोकोमोटिव जस्ट 80 के पास रहे तो पूरी की पूरी करंट, बैलेंस करंट 200 इसी 80 से आएगी. जैसे लोकोमोटिव स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स अनदर 80, मीन्स लेट मी टेल 1 and 2. So the locomotive travels towards second 80. So current from this 80 is reducing, and current of another 80, number 2, is increasing, and both the 80 put together they are giving the current. ये KCL KVL से हम लोग निकाल सकते हैं, या to make the things easy, distance का inversely proportional करके इसको हम calculate कर सकते हैं. This is how the current is distributed among the ATs and the feeder, and the balance
and the current, return current is 200 ampere. It is flowing from the feeder, back डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में फीडर से चले जाती है बैक TSS में. एंड जो करंट है लोकोमोटिव की, जो एक्स्ट्रा करंट 200 एम्पियर है, दिस फ्लोज इन द वाइंडिंग एंड बिटवीन द रेल्स बिटवीन द टू ऑटो ट्रांसफार्मर. तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि दो ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में जो रेल है उसमें तो करंट फ्लो होगी जब भी लोकोमोटिव उसमें ट्रेवल करता है, लेकिन बियॉन्ड दैट नो करंट in the rails, all the currents are returning through feeder. So having understood this, let us understand this again. ये voltage loss होता है, तो what we are doing, we are providing auto transformer. And हमारे रेलवे में क्या होता है, देखिए, जो हाफ ऑफ द करंट इन OHE हुआ तो IR ड्रॉप कम हो गया, करंट कम हुआ तो इंटरफेरेंस कम हो गए, मैग्नेटिक जो इंडक्शन होता था नियर बाई दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. सो ऑल दोज एडवांटेज तो हमें मिल रहे हैं. ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमने लगाया हुआ है, इससे क्या हुआ, लॉन्गर स्पेसिंग ऑफ TSS सब मिल रही है. लेकिन एक बिटवीन देयर इज ए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एंड वी डिज़ाइन फॉर एन नंबर ऑफ ट्रेन्स headway, but what happens on field, operating department push more currents. और ज़्यादा करंट यदि ज़्यादा लोकोमोटिव भेजता है तो जो भी हमारा सब एडवांटेज था वो सब अगेन लिमिटेशन आता है. सो while designing its capacity, ऑटो ट्रांसफार्मर की ऑटो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी शुड बी क्लियर इन माइंड कि फॉर व्हाट वी आर डिज़ाइनिंग. और उस डिज़ाइन से यदि ज़्यादा हम जाते हैं, ऑफकोर्स रिजर्व कैपेसिटी हम रखते हैं, बट फिर ऑगमेंट करके ही उसको यूज़ करना है. फॉर एन एग्जांपल, हम लोग लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाते हैं. लॉन्ग हॉल ट्रेन में लोडेड है यदि, तो वो ऑफकोर्स 400 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेता है. एंड इफ द कॉन्टैक्ट वायर इज लोडेड बियॉन्ड 400 एम्पियर्स, तो सी जंपर सारे मास्ट में चाहिए, एवरी स्पैन में चाहिए. यदि नहीं है, ऑफकोर्स करंट ज़्यादा हो जाता है और 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वहाँ पर एक ब्रेकडाउन जरूर होता है वहाँ पर, स्नैपिंग ऑफ कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर. और क्योंकि कैटनरी हमारी स्ट्रेंडेड है तो इट इज़ मोर लायबल टू फेल. यदि हम स्काडा की बात करें तो स्काडा में देयर इज़ हार्डली गोइंग टू बी चेंज, बिकॉज आपके जो मेजरेंट्स वो बढ़ जाएंगे एंड DI एंड DO कार्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा एंड आपको जो एक्स्ट्रा वायरिंग है उसकी करनी होगी. बट more or less SCADA is going to remain same, but principle of relaying is going to be little different. And again, let me mute the participants. So I have to open participant, mute, and then mute all. Okay, I have done that. So what we are seeing, impedance seen from the 50 kV side. So it is having half voltage. 20, we are seeing from the 50 kV, so it is having twice the voltage of the 25 kV and half the current, I by 2. So basically 4 upon V by I. So V by I is nothing but the 4 into Z impedance. So impedance seen from the 50 kV side will be 4 times of the 25 kV side. And relaying also we have to take care of the current of OHE and feeder both. So the guideline on relays are already available and will be shared tomorrow by the speakers of RDSO. Now, having understood 2 into 25 kV from one system, that is Scott transformer, we need to understand what is V connection. This is what called open delta, and sometimes we need open delta as well. There are some technical features which sometimes it is going to be technically better, sometimes Scott, or practically if we implement for more than 2 lines,
the complexity at open delta will be less. So the instructions, if you have read the just a moment please, let me again mute. So if you read the presentations I have already shared, Scott connection has been proposed for up and down two line, and for more than two line we are going for V connected scheme, and for more than two line TSS diagram, single line diagram has been made for open delta, 3 line, 4 line. So all drawings are already available. So again we open delta from the basic we understand कि तीन ट्रांसफार्मर प्राइमरी में ले लेते हैं, सेकेंडरी में भी यदि तीन ट्रांसफार्मर लें और एक आउट हो जाता है तो एंगल ऑल्दो 90 डिग्री, यदि आपका बैलेंस टू फेज है तो 90 डिग्री एंगल होता है, बट यहाँ 120 डिग्री है, बट इट कैन बी रिजॉल्व एंड मेड टू 190 डिग्री एंड इट बिहेव्स लाइक टू फेज सिस्टम. एंड क्योंकि फेज डिफरेंस है तो बीच में न्यूट्रल सेक्शन चाहिए बोथ the secondaries. अब from the starting we are seeing that we need one earth connection, and earth connection लेने के लिए open delta में what we do, instead of single secondary we make two secondaries, and one of the terminal of those two secondaries we combine and make a earth point. और V डेल्टा V कनेक्शन में अर्थ हमें यहाँ मिल गया है, और RDSO is not proposed ऑटो ट्रांसफार्मर इन TSS, क्योंकि जो रिटर्न करंट है अर्थ है, जो द रिक्वायरमेंट हैज ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड. लेकिन वी हैव टू रीथिंक इसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सिलरी ऑटो ट्रांसफार्मर एट TSS और नॉट. if we don't provide auto ट्रांसफार्मर एट TSS, द करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, और हो सकता है कि REF का जो हमारा सेटिंग है वो कुछ चेंज करना पड़े. सो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम नाउ, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ V connected transformer. So everything is same what we have discussed in Scott connection. The only change we are able to see is that we have made a earth in the secondary side of V connected transformer. So I am just giving a 30-second to have a look from beginning of the single line diagram. Let me check chat box also whether it is visible or not. So I'm opening my chat box. Yeah. There is a question, sir, what is the terminal diagram of individual auto transformer, how it is connected to OHE? अब देखिए ऑटो we are all engineer, and our prime duty is to restrict the cost. जो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है उससे हमको कनेक्ट करना है. अब ऑटो ट्रांसफार्मर है, स्टैटिक है, एंड ऑटो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं कि it is not being loaded every time. Whenever locomotive passes, then only it is giving the current. तो current भी पूरे समय इसमें नहीं है, तो there is a remote chance that it will fail. So what we are doing, what we are proposing कि it can be connected by jumper as well. जितने ज़्यादा आप आइसोलेटर लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी शुरू होती हैं रिगार्डिंग मेंटेनेंस की. सो PSI अभी तक हमने मतलब न्यू डिज़ाइन से बनाया तो नहीं है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, सिंपली बाय जंपर इट कैन बी कनेक्टेड. हाउ फेज डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट फ्रॉम द इनकमिंग सप्लाई. अब फेज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है, RYB 3 फेज ले रहे हैं, 3 फेज हम लोग लेते जाएंगे, फेज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत 2x25 kV में नहीं होगी. स्लाइड नॉट विजिबल, स्लाइड नॉट विजिबल, बट आई थिंक यदि ऐसा होता तो और लोगों ने लिखा होता.
So I think there is no question on the chat box further, no questions is available. And I believe you all will be seeing the single line diagram of open delta or the V connected transformer. This V connected transformer, we are basically made one earth system, and if I open that RDSO drawing, just a moment, I'll open it. So no, just a moment, no AT have been suggested there. Yeah, please write on the chat box if you are able to see the single line diagram, big sheet of RDSO on your screen. Let me see chat box. Just one or two can write. Yeah, so it's visible now. Good. So what I am doing, I am just enlarging the TSS view of on PDF. So this what we have seen. I have just taken a snapshot of this drawing and I have shown you. Now go ahead and have a look. So no AT is available here. I'm just keeping it for 30 seconds so that you may have a look. So this is a 3 line. 2 line के लिए तो होगा नहीं. अब 2 and more के लिए V connected होगा, तो ये 3 line का एक scheme है. And what shall be the size? How is the bus bar connection? Which conductor will be taken? These all theoretical things I have already shared in a Google Drive, so that you can go ahead and just have a look on it. The diagram is having a legend, so all things can be easily understood. So what is the difference between SP of open delta and SCOT? Because we are not providing any AT on TSS, so at SSP, first SSP, the size of the AT will be large one, bigger one, that is 12.3 MVA. So I have already shared this drawing, so I think there's no point in further discussing it. One can, and those who are implementing this scheme, they can further study and have a look, and things are self-explainable. Further input is not required. And all TSS, as we know, that they will be having power factor correcting equipment, and 2 banks of 4+4 MVR has been provided in both SCOT and this connection, open delta connection. And basically why 2? Because one is a teaser winding, another is a main winding. 2 winding उनके लिए अलग-अलग चाहिए. And more 3-phase locomotives are coming, and as we know that locomotive is theoretically taking unity power factor current from the OHE, तो धीरे-धीरे शायद रिक्वायरमेंट इसकी जरूरत नहीं होगी. एंड जो डायनामिक कॉम्पनसेशन होता है, जो कि हाई स्पीड ट्रेन, जो कि मे बी DFCCIL एंड आवर बुलेट ट्रेन का जो अरेंजमेंट होगा उसमें लगाएंगे. बट in our Indian Railway, there is no provision for dynamic compensation. Dynamic compensation means requirement के हिसाब से आप कैपेसिटर और इंडक्टर हमारा अपना स्विच ऑन कर सकते हैं थ्रू with the help of Powertronics. So this is how cross feeder go. This is the Bina Katni section again, and this is the diagram, and just have a look कि किस तरीके से कनेक्शन आगे एक्चुअल में किया गया है, and it is in working condition. In a chat box there is a question, sir, how to provide earthing connection to rails in case of open delta feeding. Open delta feeding में बताया कि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी में 2 वाइंडिंग है, एंड
एक टर्मिनल उनके कनेक्ट करके वी आर कनेक्टिंग टू अर्थ। आगे क्वेश्चन और है, सिंस देयर इज नो एक्सटेंडेड अर्थ वायर फ्रॉम द टीएसएस टू ओएचई सिस्टम, एग्जैक्टली फीडर वायर नहीं है टीएसएस, मतलब फर्स्ट एसएसपी से आपके टीएसएस तक, बट आई शो यू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। थोड़ा सा रिलेइंग में चेंज होगा, बट अगेन उसमें यदि कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। Is there any standby transformer in TSS? Another question is there. Yes, of course it is there. स्कॉट कनेक्शन में हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, सेम सिस्टम जो अभी का चल रहा है। एक स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर ही बोथ द साइड में फिट करता है। एंड आपका जो ओपन डेल्टा है उसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, और जो सेकेंडरी में 2 ट्रांसफार्मर, क्योंकि ओपन डेल्टा मीन्स जस्ट अ मोमेंट, ओपन डेल्टा मीन्स, लेट मी टेक द पेन। देखिए ओपन डेल्टा मतलब ये होता है कि एक इसका यदि एक ट्राइंगल मीन्स एट ईच साइड देयर इज ए सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो एक सेकेंडरी यदि ओपन हो जाती है तो ओपन डेल्टा की तरह बिहेव करता है। एंड यहाँ पर हमने दो 2 सेकेंडरीज लगाई हुई हैं, और उसका एक टर्मिनल कॉमन करके अर्थ दिया हुआ है, और दिस इज +25 kV एंड दिस इज another is -25 kV। और नाउ द क्वेश्चन इज कि जो थर्ड ट्रांसफार्मर ये क्या करेगा। दिस इज बेसिकली वन which is standby, which is being asked. So this can be connected here and there. One transformer, we are having flexibility in open delta described screen. So shunt capacitor I was discussing. So this is the shunt capacitor. अगेन इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अभी जो नया डिज़ाइन है उससे तो अभी बना नहीं है, इट इज़ इन कॉन्सेप्चुअल स्टेज। एंड विद दिस पिक्चर आई बिलीव इट विल गेट क्लियर कि वो 2 सेकेंडरी बना करके उसको अर्थ से हम लोग जो जोड़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है। ओपन डेल्टा में एक ट्रांसफार्मर आपका ओपन हो जाता है तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है, और आपको वैसे भी समझ में आ रहा है कि वो 120 का फेज डिफरेंस मिल रहा है, चाहिए हमें 90, तो ओपन डेल्टा की जो परफॉर्मेंस है वो इन्फीरियर है एज फार एज नेगेटिव सीक्वेंस करंट, एज फार एज बैलेंसिंग इज कंसर्न। So this was the short मतलब many times being asked कि कैसा कनेक्शन है। तो ये जो TSS है, यदि TSS और हमारा जो फर्स्ट 80 ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होगा उसके बीच देखें तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए यदि लोकोमोटिव 200 ले रहा है तो ये 175 है, ये 25 है फीडर, मतलब एग्जैक्टली 175 वापस नहीं आ रहा है। और यदि हम एक 80 TSS में भी लगा दें ओपन डेल्टा में, तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जैसा कि हमने स्कॉट में पढ़ा वैसा है। एंड नाउ this slide basically summarizes the comparison because many have asked earlier as well. So ओपन डेल्टा में जो स्टैंड बाई है उसमें केवल एक सिंगल ट्रांसफार्मर की कॉस्ट आती है। स्कॉट में वी हैव टू कीप वन स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर एज ए स्टैंड बाई। यूटिलाइजेशन फैक्टर मीन्स हाउ मच यू आर यूटिलाइजिंग योर ट्रांसफार्मर। सो मैक्सिमम ओपन डेल्टा में वी ऑलरेडी नो √3/2 जो आता है फैक्टर उससे 86.6% होता है। स्कॉट में इट इज़ हायर। as far as capital means cost is concerned, only transformer is economical. Apart from transformer, all other costs are same. Just economy यदि देखें तो ऐसा है, but we need not to see only economy. उसका जो practical aspect है वो भी देखना है। voltage imbalance 50% imbalance तो होगा ही, and Scott connection में we can achieve up to 0%. So the Scott superiority of Scott as far as technicality is concerned, it's clear now. Negative sequence current whenever there is unbalancing, negative sequence current तो आता ही है। And one thing we can now discuss. I have told that just a moment, again I have to
all participants see that their audio is muted. So I told that there will be two secondaries, and one side one is feeding, another side another is feeding, and in between there will be a neutral section. So this we have seen, and uh, any transformer, it is a balance if secondary is balance. आप लोग जनरल सर्विसेज में भी यदि देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो फीडर्स होते हैं उनके 3 फेस के, उसको जा करके कभी कभी चेंज करते हैं। एसी यदि ज़्यादा लग गया तो उसको भी हम चेंज करते हैं जा करके कि लोड लगभग लगभग बैलेंस रहे। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे, मान लीजिए एक सेक्शन में ट्रेन है एंड अदर सेक्शन इज नॉट हैविंग एनी ट्रेन, जीरो करंट, तो क्या होगा? तो इन दैट केस बेसिकली प्राइमरी साइड में यदि वी कनेक्टेड है तो टू फेज विल बी हैविंग से 50-50 एम्पियर से 100 एम्पियर का लोड था, एंड अनदर फेज विल बी हैविंग जीरो। वेयर इज इन स्कॉट कनेक्शन जो वाइंडिंग्स होती हैं, देर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिएक्टिव पावर फ्लक्सेस, एंड इसमें बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे एक फेज में 50 एम्पियर का करंट है, बाकी फेज में 25-25 का है। So to answer any question on open delta and SCOT is that SCOT is technically superior, लेकिन जो implementation है सेकेंड और थर्ड, मतलब यदि 3 and 4 लाइन है तो ओपन डेल्टा में कॉम्प्लेक्सिटी कम है, एंड दैट इज द रीज़न कि द स्कीम ऑफ ओपन डेल्टा हैज़ बीन चोजन। There will be chance that our OHE and the feeder get short circuited हो जाएगा। तो इस तरीके का जो इम्पिडेंस आता है, एंड वाई डू वी नीड सिमुलेशन, ये भी इस स्लाइड से हमको क्लियर होगा कि जो अभी तक हमारी जो OHE इम्पिडेंस था, वी हैव गिवन फिक्स इतना ओम्स एट एन एंगल ऑफ दिस पर किलोमीटर, एंड फॉर रिले सेटिंग एज वेल हम क्या करते थे कि उसको मल्टीप्लाई करके और वेरी इजीली वी कैन डू दैट। बट यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर बीच में लगे हुए हैं, एंड वन थिंग वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि 50 kV साइड से आप देखते हैं तो 4 टाइम्स उसको दिखाई देता है। एंड ऑटो ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस जो सीन होता है वो बेसिकली नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व्ड एंड प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स अपवर्ड साइड। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा इम्पीडेंस आता है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में तो ये इम्पीडेंस इस तरीके का दिखता है। शॉर्ट सर्किट यदि हो जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि S/R जो रहता है वो उसकी वजह से वो फिर स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देता है। सो दीज आर दी थिंग्स एज फार एज impedances आर कंसर्न, एंड बिना कटनी सेक्शन में व्हाट वी आर डूइंग दैट, जो सेटिंग है रिलेस की, दैट वी हैव वंस ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड जब कंस्ट्रक्शन उसका हुआ है, एंड कोई चेंज होता है तो प्रैक्टिकली दे डू इट एंड चेक वेदर रिलेज आर एक्टिंग एट द TSS और नॉट, एंड वी कैन आल्सो आइदर गो फॉर सिमुलेशन, और हमारा जो टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है सेक्शन का तो उसको बेस करके वी कैन डिसाइड, एंड प्रैक्टिकली वी कैन सी। एक्चुअली जो सिमुलेशंस होते हैं वो भी जब तक आपका OHE परफेक्ट है, मीन्स एज पर डिज़ाइन है, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन हमारे साथ देर आर नंबर ऑफ इशूज़ लाइक यार्ड हैं, तो वो यार्ड की मॉडलिंग करना सिमुलेशन में इज़ नॉट ईजी। तो नॉर्मली वो सब जब सिमुलेशन करते हैं तो यार्ड वगैरह को हम हटा भी देते हैं। एंड वन थिंग इज़ दैट जो हमारा इम्पीडेंसेस हम बताते हैं वो इम्पीडेंस जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू। rather I will request if someone does a short circuit test with power factor meter or voltage and current meter, so from that we can calculate exact हमारा impedance कितना है। और फॉल्ट होता है तो कई बार हमको अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ही मिल पाती है, रीज़न बीइंग कि वो जो रिले है जो सीन कर रहा है वो क्या इम्पीडेंस सी कर रहा है। हमारे बीच में यार्ड आ जाते हैं, कई लाइंस आ जाती है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड ऑल दोस थिंग्स। अब नाउ अगेन ए क्वेश्चन टाइम, एंड बताएं कि यदि ये 80 फेल हो जाता है
चैट बॉक्स में बताएं तो व्हाट विल हैपन, क्या क्या फ़र्क पड़ेगा सिस्टम में। आई एम जस्ट ओपनिंग माई चैट बॉक्स, मेकिंग इट अ बिगर साइज बिकॉज मेनी आंसर में कम। जस्ट 4-5 आंसर लिख के बताएं कि यदि एक एटी बीच का फेल हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए ये यदि फेल हो जाएगा तो अदर्स विल बी ओवरलोडेड, ऑब्वियसली ये भी सप्लाई कर रहा था, ट्रेन तो देखिए आगे भी हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी ओवरलोडेड एंड जो रेल की करंट है वो ज़्यादा समय तक रेल में फ्लो होगी। फिर क्या होगा, इंटरफ्रेंस बढ़ जाएगा, रेल का पोटेंशियल जो इतने में ही हो जाता था वो अब रेल पोटेंशियल विल ट्राई टू rise in these places। लेकिन since one thing is very important that we are providing just अब बंद कर दें चैट बॉक्स में, अदरवाइज क्लटर हो जाएगा। इट्स गुड दैट यू हैव आंसर्ड, क्योंकि आप समझ चुके हैं, दैट्स वाई द आंसर्स आर कमिंग। तो एवरी एस पी एंड एस एस पी एंड टी एस एस तो हमारे पास बड़ी ड्रिल होती ही थी। एस पी एस एस पी में हम लोग एटी लगा रहे हैं, एटी का जो न्यूट्रल है, दिस प्लेस आई एम, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। सो दिस न्यूट्रल वी आर गेटिंग इट अर्थ, अर्थ मीन्स उसमें रिटर्न करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स वहाँ पर एक बड़ी ड्रिल भी होगी। एंड आवर आर डी एस ओ इज ऑलरेडी विजनरी, उसने पहले ही लेटर निकाल दिया, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आपको तो ये बड़ी ड्रिल लगा करके अर्थ का कनेक्शन करना ही है। तो होपफुली कई जगह तो हो गया है, न्यू कंस्ट्रक्शन में हो ही रहा है। सो वी हैव टू ट्रेन अवर इंजीनियरिंग स्टाफ कि वो ऐसे बॉन्ड वॉन्ड नहीं खोल सकते। ऑल एस पी एस एस पी हैव टू बी ट्रीटेड लाइक अ टी एस एस, अदरवाइज तो जो हमारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो ही खराब हो जाएगा। देखिए एक आंसर और भी आया है कि वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाएगा, ऑब्वियसली जितने भी एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेज में बदल जाएंगे। दैट्स गुड। नाउ से दिस इज ए एस पी एंड दिस 80 गोज ऑफ, क्या होगा। लेट मी अगेन ओपन द चैट बॉक्स। एसपी का 80 यदि चला जाता है तो अब क्या होगा। बीच का तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एसपी का यदि 80 चला जाता है, या मैं कहूँ यदि फीडर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा। फीडर यदि कोई इशू हो गया कोई फीडर में तो क्या होगा। कैन वी रन इट ए 1x25 kV सिस्टम। क्या हम 1x25 kV सिस्टम की तरह इसको रन कर लें। नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए आप बता रहे हैं यस एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दी रेल, बिल्कुल, जब ये सिस्टम है ही नहीं और करंट ये अर्थ है तो ये अर्थ से जाने लगेगी। तो लेकिन ऐसा क्या होगा, नहीं। एसपी में क्या है, वी आर हैविंग ए से दिस इज अप लाइन, सो वी आर हैविंग अ डाउन लाइन, तो डाउन लाइन का 80 तो है वो पैरेलल में है, तो दैट विल टेक केयर। तो आपको एक 80 को यदि मेंटेनेंस में लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स ये ओवरलोडेड होगा डाउन का, यदि कोई भी 80 फेल होता है तो कहीं ना कहीं से तो करंट आ रही है, तो ओवरलोडिंग की जो प्रॉब्लम है वो आएगी ही। और यू कैन नॉट रन लाइक अ सिंगल, ऑफ कोर्स टेक्निकली यू कैन रन लाइक ए 1x25 kV सिस्टम फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन जो हमारी रिलेइंग है दैट इज नाउ एट ओ एच ई एंड एट, कहना चाहिए कि फीडर से भी करंट लेकर के उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि फीडर आपका नहीं है, आपने 1x25 kV सिस्टम में से मान लीजिए आपको लगता है कि ट्रेन चलाएंगे, तो अवर ऑल प्रोटेक्शन हैज़ बीन बाईपास्ड एंड टेक्निकली नो वन विल अलाउ विदाउट प्रोटेक्शन रनिंग ऑफ ट्रेन विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो वो फिजिबल नहीं होगा, बट टेक्निकली आप सही बता रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। वेरी कैलकुलेटिव आंसर आई एम गेटिंग, 1.7 टाइम्स करेंट विल बढ़ जाएगा, 170% करेंट बढ़ जाएगी। समथिंग पीपल हैव ऑलरेडी रेड एंड दे आर वेल अवेयर विद द सिस्टम, दिस व्हाट आई वाज टेलिंग, इज नॉट ए न्यू सिस्टम एंड नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल। आई डोंट नो कितना परसेंट बढ़ेगा, तो अगेन इससे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर का सिस्टम, मेनी मैथ्स आएंगे, नोड वोल्टेज, नोड पोटेंशियल, नोड करंट, वो निकाल करके करना होगा।
then only we can know कि which AT will get overloaded. इसको इतना simple answer करना it will be difficult. Now think of कि एक तरफ 1 into 25 kV है and another is 2 into 25 kV, तब क्या होगा? So these are the two questions I am leaving with the participant. Ki another is again 2 into again from 1 into 25 kV it is going to 2 into 25 kV. So answer is already given in the presentations I have already shared in the Google Drive. So what I will request, I will all participant to once go through so that things get clear. These are some more actual photographs. Just have a look. Just 1 minute I'll keep so that it can be seen. This is a photograph of existing system. And wherever place is not there, I'll just go through if it gets open. Gas insulated substation has been provided if places are not available and sufficient land is not available. So oh shit.